प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर समय के लिए. I'm thankful to God. Penny has been with me now, so we'll be preaching and translating together. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ है और हम इकट्ठे मिलके वचन को सीखेंगे और इसका तर्जुमा My request is that who are listening today, who are watching this program, just stay back today. मेरी विनती है कि जितने लोग आज सुन रहे हैं देख रहे हैं इस बंदगी को वो अंत तक देखें. Because I'm sure that God is going to talk to all of us and bless us together. क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे जरूर बात करेगा और आपको आशीषित करेगा. I want to read one verse from Psalm 107 verse 20. मैं ज़बूर भजन संहिता 107 की 20 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ. It's written here, when people were in trouble, when they wanted to be delivered, यहाँ पर लिखा गया है जब लोग परेशानी में थे और वो छुटकारा मांग रहे थे. verse 19 says, then they cried to the Lord in their trouble. 107 की 19 में इस तरह लिखा है, Then they cried to the Lord in their trouble, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं and He saved them from their distress. और वे सकीती से उनका उद्धार करता है. He sent out His word and healed them, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है and delivered them from destruction. और जिस गढ़े में वे पड़े हैं उससे निकालता है. Let them thank the Lord for His steadfast love, लोग यहोवा की करुणा के कारण for His wonderful works to the humankind. और उस आश्चर्य कर्मों के कारण वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें. Okay, it's okay. Okay, I'll just do like this. Is it okay? You see, God always wants to give us good health. अब आप देखिए कि परमेश्वर हमेशा हमें भला चंगा देखना चाहता है. When we look unto Him, जब हम उसकी तरफ ताकते हैं, no matter in our troubled sometime, no matter in our good times, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, when we look unto Him, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, when we call upon His name, जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, He sends His word, तो अपना वचन भेजता है and He healeth us. और हमें चंगा करता है. Not only physically, सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं, emotionally, mentally, जज्बाती तौर पे, दिमागी तौर पे, spiritually, आत्मिक तौर पे, emotionally, जज्बाती तौर पे financially too. और हमारे पैसों को भी बरकत देता है. So may God heal all of you today. सो मेरी विनती है कि परमेश्वर आज आप सबको भला चंगा करे. I know the time is going very hard, मैं जानता हूँ कि समा कठिन जा रहा है and we all together need to work very hard. और हम सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है All together we need to work hard. और हमें जरूरत है कि हम मेहनत करें. Because when I was reading this morning the news from the Tribune that the High Court of Punjab said very straightforwardly that religious institutions will not be allowed to open. आज मैं जब अखबार पढ़ रहा था तो उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अभी ना धार्मिक स्थल और ना ही स्कूल्स और कॉलेजेस अभी खुलेंगे. So we really need to be patient. तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है. So I think what I started last weeks, जो पिछले हफ्तों में मैंने शुरू किया है, I will continue on the online on Facebook. तो मैं उसको ऑनलाइन ही जारी रखूंगा. I was trying to finish Revelation chapter 2 last Sunday. मैं प्रकाश की पोथी दूसरा अध्याय खत्म करने की कोशिश कर रहा था. But then I told you that I found 7 words of repentance for 7 churches. लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर 7 शब्द दिए गए 7 कलीसियाओं के लिए, And पश्चाताप के शब्द. And it's very important to continue to study about repentance deeply. और मैं ये कहता हूँ कि पश्चाताप के बारे में बड़ी गहराई से पढ़ना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है. Because sometimes we have repentance just by namesake. क्योंकि कई बार हम सिर्फ नाम का पश्चाताप करते हैं. We don't have the true and real repentance from the depth of our heart. वो हम हृदय की गहराइयों से हम पश्चाताप नहीं करते. And we don't find fruit in our lives. और फिर हमारे जीवन में फल नहीं लगते. You see, if I talk about repentance today, I want to discuss about a few people from the Bible who were chosen by God, given God's kingdom, but they were not really repenting in their activities from day-to-day life. मैं आज कुछ ऐसे लोगों का बाइबल से जिक्र करूंगा
जिनको परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उन्होंने अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में पश्चाताप नहीं किया। First of all, if we want to find the true meaning of repentance, यदि हम पश्चाताप का सही अर्थ जानना चाहते हैं, it is in the New Testament, the Gospel of Luke chapter 3, तो हमें लूका तीसरे अध्याय पे जाना पड़ेगा, verse 7 to 14. 7 से लेकर 14 आयत तक। And here, Gospel of Luke tells us very clearly, or Saint Luke tells us very clearly what kind of repentance we need in our lives. लूका बताता है कि हमें किस किस्म का पश्चाताप हमारे जीवन के लिए जरूरी है। I said from chapter 3, verse 7 to 14. अध्याय तीसरा, लूका 3 15 से 7 to 14. 7 से लेकर 14 तक। My listeners, my friends who are listening to this message, मेरे मित्र जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, please pray for us. प्लीज हमारे लिए आप प्रार्थना करें, Because of lockdown, I'm not able to get AC fitted in this room. क्योंकि लॉकडाउन के कारण इस स्टूडियो में एसी नहीं लग पाया। Pray that this week we may be able to get an AC. प्रार्थना करें कि यहाँ पर वो एसी की सुविधा उपलब्ध हो जाए। Now, when John saw the crowd in chapter 3 of Luke chapter 3, लूका 3 में जब यूहन्ना ने भीड़ को देखा, it's written, John said to the crowds that came out to be baptized by him. 7वीं आयत में लिखा है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उससे वह कहता था। These people who wanted to receive the Lord in their lives, ये वो लोग थे जो कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना मांगते थे। they wanted to receive the Lord. ये परमेश्वर को अपने जीवन में देखना मांगते थे। But he spoke to them very directly. लेकिन उसने बड़े सीधी तरीके से उनसे बात की। You brood of vipers who warned you to flee from the wrath to come. वो उनसे कहता है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। Why did he say these words? उसने भला ऐसा क्यों कहा? Because he was noticing the people who were being baptized or earlier being baptized, probably there was no fruit in their lives. क्योंकि वो ये देख रहा था कि जिन्होंने पहले बपतिस्मा ले लिया था, उनके जीवनों में कोई फल नहीं थे। So that's why he directly said in verse 8, इसीलिए वो 8वीं आयत में सीधी तरीके से कह रहा है, bear fruits worthy of repentance. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर तुम नहीं सॉरी 8 Verse 8. 8 Yeah. अतः मन फिराने के योग्य फल लाओ। He says, bear fruits worthy of वो repentance. कहता है मन फिराने के योग्य फल लाओ। If there is no fruit in our lives, यदि हमारे जीवन में फल नहीं होगा, it means there is no true repentance. इसका मतलब कि हमने सच्चा पश्चाताप किया ही नहीं। There are 2-3 things he talks about repentance, the fruit of repentance. यहाँ पर पश्चाताप के बारे में, पश्चाताप के फल के बारे में 2-3 बातें कही गई हैं। Suppose, the crowd got surprised. यहाँ पर जो भीड़ थी वो हैरान हो गई। In verse 10, the crowd asked him, then what should we do? 10वीं आयत में वो लोग ये कह रहे हैं, तो हम क्या करें? And in reply, he said to them, और उसने उन्हें उत्तर दिया, whoever has 2 coats must share with anyone who has none. जिसके पास 2 कुर्ते हैं वे उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, And whoever has food must do likewise. और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। I think these days we must practice this thing. मैं सोचता हूँ कि आजकल हमें इस चीज के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। And many of you are doing practically and wonderfully. और हम में से कई हैं जो इसको कार्यशीलता में ला रहे हैं। Because these days when people are hungry, I am watching many good leaders are trying to serve the humanity, the poor people. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई नेता भी हैं, कई लोग भी हैं जो आज भूखों को रोटी खिला रहे हैं। Then tax collectors came to him to be baptized. In verse 12. 12 आयत, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। And they also asked the same question. और उन्होंने भी यही सवाल किया, Then he replied, हे गुरु हम क्या करें? collect no more than the amount prescribed for you. उनको भी उसने यही जवाब दिया, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। Now the soldiers came and asked him, फिर सिपाही उसके पास गए और पूछा, and what we should do? हम क्या करें? He said to them, उसको भी उन्होंने यही कहा, don't extort money from anyone by threats or false accusation, and be satisfied with your wages. किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतुष्ट करना। We'll be talking that John the Baptist talked about 3 or 4 kinds of fruits here in a person's life. Say, the one who is baptized, the one who received the Lord Jesus Christ these यहाँ days. पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो 2-3 फलों के बारे में जिक्र कर रहा है। If you don't produce such kind of fruits in your life, यदि हमारे अंदर ये वाले फल नहीं लगते, I'm scared, I'm afraid तो मुझे डर है that we should also not be called brood of vipers. कहीं हम भी सांप के बच्चे ना कहलाए जाएं। You know, when I read the Bible,
मैं जब वचन पढ़ता हूँ that this warning is given to the 7 churches. यही चेतावनी 7 कलीसियाओं को दी गई है। And I find in the Old Testament, और मैं देखता हूँ पुराने नियम में, I'll take one character from the Old Testament, मैं पुराने नियम में से एक चरित्र को लेता हूँ, and one character I'll take it from the New Testament, एक चरित्र मैं from नए the नियम से Gospels, लेता हूँ, इंजीलों में से, and then finally one character, small life about him from the book of Revelation. और एक चरित्र जो है वो मैंने प्रकाश की पोथी से लिया है। Now I want to talk about the King Saul. सबसे पहले मैं राजा शाऊल के बारे में बात करता हूँ। He was chosen by God. परमेश्वर ने इसको चुना, He was losing war लड़ाई हार रहा था when Goliath stood against him. जब गुलायत उसके विरोध में खड़ा हो गया, But God sent a warrior, King David, who became king later on. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद उसको उसके पास भेज दिया जो बाद में राजा बन गया, And this brother David, King David, saved him and Israel. और दाऊद ने उसको भी और इसराइल को भी बचा लिया। Now, this man, Saul, should be thankful to God and to David. शाऊल को धन्यवादी होना चाहिए था दाऊद के प्रति भी और परमेश्वर के प्रति। He was appointed by God उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था on the request of the Israelite people. इसराइलियों के कहने पर। But when he was elected by God, लेकिन जब उसको परमेश्वर ने चुना, he was not behaving according to God's standard. लेकिन वो परमेश्वर के मापदंड के मुताबिक नहीं चला। Why I'm saying? मैं क्यों कह रहा हूँ? Because there was no fruit of repentance in his life when he was appointed by God. इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई पश्चाताप का कोई फल नहीं था जबकि परमेश्वर ने उसको चुना था। First of all, पहली बात, he got jealous of King David. वो दाऊद से उसके अंदर जलन उत्पन्न हो गई उसके अंदर, He wanted to kill him. उसको मारना मांगता था। Then he started developing, making schemes. फिर दूसरी चीज वो स्कीमें बनाने लगा। He was a king. वो किंग था, राजा था। Do you think a king should do like that? क्या आप सोचते हैं कि राजा को इस तरह करना चाहिए? Do you think when a leader is on his position, he should do like this? क्या आप सोचते हैं कि जब लीडर एक पोजीशन पे होता है तो उसे इस तरह से करना चाहिए? Do you think when a pastor is on his position, he should make schemes like this? क्या आप सोचते हैं कि एक पासबान जब पोजीशन पे होता है तो उसको ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए? What it shows, ये क्या दर्शाता है? this was not really a true repentance. ये दिखाता है कि एक सच्चा पश्चाताप उसके अंदर नहीं था। I just want to draw your attention in 1 Samuel chapter 18, मैं आपका ध्यान पहला शमूएल 18 बाब की तरफ लेकर आता हूँ। verse 17 to 19. पहला शमूएल, He developed some schemes to kill David through the Philistines. उसने कुछ स्कीमें बनाई दाऊद को फिलिस्तियों के जरिए से मरवाने की। Now, why I'm saying, 1 Samuel chapter 18, पहला शमूएल 18 बाब verse 17 to 19. 17 से लेकर 19 तक He played a trick with the David. उसने दाऊद के साथ एक चाल खेली। He offered his daughter to him. उसने अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दिया। But when the right time came, लेकिन जब सही समय आया, his daughter was married to someone else. उसने अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दी। He's a king. राजा है, King David saved him. दाऊद ने उसको बचाया था। Not only him, but the entire country. सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि पूरे देश को बचाया था। He should have really supported King David like anything. उसको दाऊद को पूरा सपोर्ट करना चाहिए था। But he has played a trick with David. लेकिन उसने दाऊद के साथ चाल खेली। Let's read it in Hindi. हम हिंदी में पढ़ते हैं। Yes. 17। Yes, there are 17 to 19. Yeah. शाऊल ने ये सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन फिलिस्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े। Okay, this was his scheme. ये Okay. उसकी चाल थी। उसने Yeah. कहा, Yes. सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह करा दूंगा। Okay. इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेराब का दाऊद से ब्याह किया जाए, तब वह महुलाई से ब्याह दी गई। See here the trick of King Saul. यहाँ पर आप देखें साउल की चालाकी। He's appointed king by God. परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया राजा है। But do you find a kind of repentance or the fruit of repentance in his life? क्या आपको पश्चाताप का फल उसके अंदर दिखाई दे रहा है? Or in other words, fruit of being a godly man reigning as a king in Israel? या उसके अंदर आपको एक फल दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त किया गया है और राजा है। He played a trick with David. उसने दाऊद के साथ चालाकी खेली। He wanted to kill David. दाऊद को मारना मांगता था। Let's read the 1 Samuel chapter 24. हम 24 अध्याय पे आते हैं। पहला शमूएल And we'll find it here. 24 अध्याय।
When Saul returned from following the Philistines, he was told David is in the wilderness of En-Gedi. Then Saul took 3,000 chosen men out of all Israel and went to look for David and his men in the direction of the rocks of the wild goats. Yes, read it in Hindi. 24 अध्याय की पहली, yes. जब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको ये सुसमाचार मिला कि दाऊद एक गादी के जंगल में है। हाँ. तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बेनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। See, here King Saul went to look for David with 3,000 people to kill him. यहाँ पर शाऊल जो है वो दाऊद को मारने के लिए 3,000 लोगों को साथ में लेकर गया। Now, when we go further, अगर हम आगे बढ़ते हैं, we find that David was there, and David found that he had an opportunity to kill Saul. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शाऊल को एक मौका, दाऊद को एक मौका मिल गया था शाऊल को मारने का। But David spared his life. लेकिन दाऊद ने उसकी जान बख्श दी। And even Saul confessed that, oh, you are more righteous than me. और शाऊल ने यहाँ पर कहा भी कि तू मेरे से ज्यादा धर्मी है। And Saul had an agreement with David. और शाऊल ने दाऊद के साथ समझौता किया। After having this promise in 24th chapter, 24वें अध्याय में ये समझौता करने के बाद, see, Saul did not show any kind of fruit of repentance in his life. शाऊल ने फिर भी कोई पश्चाताप का फल उसके जीवन में नहीं I'm दिखाया। repeating these words over and again. मैं बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा हूँ। He was a king. वो राजा था। David saved his life. दाऊद ने उसकी जान बचाई। David saved Israel's life. दाऊद ने इस्राएल देश को बचाया। Now, this man wanted to kill him. And then after finding the truth, he had an agreement with him that he will not kill him. उसको मारने के लिए फिर रहा था, लेकिन जब वो उसके चाल में फंस गया, शाऊल दाऊद के से फंस गया, उसकी जान खतरे में आ गई, तो उसने समझौता कर लिया। लेकिन उसके बाद भी उसने पश्चाताप नहीं किया। Now we come to chapter 26. अब हम 26 पे आते हैं। Let's read verse 1 and 2. हम पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं। 26 अध्याय पहली और दूसरी। Then the Ziphites came to Saul at Gibeah, saying, David is in hiding on the hill of Hachaliah, which is opposite Jeshimon. So Saul rose up and went down to wilderness of Ziph with 3,000 chosen men of Israel to seek David in the wilderness of Ziph. फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल से 3,000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए दाऊद को जीप के जंगल में खोजने लगा। See, again he wanted to kill David. यहाँ पर फिर आप देखें कि वो दाऊद को मारने के चक्कर में। Now what do you find here? अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? We will find the results. Because since he did not have true repentance, अब हम देखेंगे उसका नतीजा देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं था। that because of non-repentance from the depth of his heart, उसके अंदर दिल से पश्चाताप नहीं था, he was sinning and sinning and sinning वो again. बार बार पाप करता ही गया। Now, if he had a true repentance, यदि उसके अंदर सच्चा पश्चाताप होता, he would have given David his first daughter about whom he had promised. तो वो दाऊद को अपनी बेटी जिसके लिए उसने वायदा किया था उसको दे देता। Somehow he didn't give him first daughter. लेकिन उसने वो नहीं किया। In the meantime, the second daughter fell in love with David. इसके बाद दूसरी उसकी बेटी थी, वो दाऊद को पसंद करने लगी, She was married to him. उसके साथ उसका विवाह हो गया। In a way, David became his son-in-law. एक तरह से दाऊद जो था वो उसका जवाई बन गया। But King Saul did not think and consider about all these relationships. लेकिन दाऊद ने इन रिश्तों को भी नकार दिया। Now, what I want to say? मैं क्या कहना मांगता There हूँ? was no true repentance. क्योंकि उसके अंदर सच्चा पश्चाताप ही नहीं था। Okay, here again David spared his life. यहाँ पर फिर दाऊद ने उसकी जान को बख्श दिया, Okay. शाऊल की। In a way, this was a final agreement. यूँ कहिए कि ये एक अंतिम समझौता था। Now, what happened? लेकिन क्या हुआ? Because of that not having true repentance from the depth of his heart, his prayers were blocked. क्योंकि उसने सच्चा पश्चाताप नहीं किया था, उसकी प्रार्थना जो थी वो रुक गई। Why? Because when we read further on, especially chapter 28 of 1 Samuel, जब हम 28वें अध्याय में आते हैं,
King Saul was attacked by the Philistines. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दाऊद जो था फलिश्तियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया And he started crying unto God. और वो परमेश्वर के सामने चिल्लाने लगा, But he didn't get any answer. लेकिन जवाब नहीं मिला. Even he had removed the spirits and what do you call that? The people, mediums, the people who used to deal with mediums and the spirits. यहाँ तक कि उसने जो भावी कहने वाले थे उनको भी हटा दिया था. He knew about God. He knew God. वो परमेश्वर को जानता था, That's why he removed them. इसलिए उसने हटाया. But there was no true repentance or the fruit of repentance in his life. लेकिन उसके अंदर पश्चाताप नहीं था और ना ही पश्चाताप का कोई फल था. Now what we see here, अब हम क्या देखते हैं 28 अध्याय में, when he did not get any answer from God, जब उसे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, even he started calling Samuel. वो शमूएल को बुलाने लगा. Then he went to a person तो फिर वो किसी के पास गया and then he requested to call this the person who's known as medium. फिर वो भावी कहने वाले किसी व्यक्ति के पास गया जो Yeah, you read it verse 4 and 5. 4 और 5 में हम देखेंगे. जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शमूएल ने शुनेम ने छावनी डाली तो शाऊल के सब इसराइली को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलवी में छावनी डाली. Okay. पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो उठा. Yes, you see, he is scared of now because of the enemy. तब शाऊल ने यहोवा से पूछा. यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया. यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा. लेकिन तब शाऊल को कोई उत्तर नहीं मिला. Now this is what I want to say. और मैं यही आपसे कहना मांगता हूँ, When you don't have true repentance in your heart, जब हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं होता, you know what is going on in your heart. हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. Lord tells you, परमेश्वर आपको चिताता है, your heart gives you the right signal. तुम्हें सिग्नल भी मिलता है. Your conscience tells you where you are wrong. तुम्हारी अंतरात्मा भी तुम्हें बताती है कि तुम कहाँ गलत The हो. word of God tells you where you are wrong. वचन तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ गलत हो. Sometimes the pastor tells you that you are wrong. कई बार तुम्हें पास्टर भी चिताता है. Sometimes your husband tells you that you are कभी wrong. तुम्हारा पति तुम्हें चिताता है. Sometimes your wife tells you that you are wrong. कभी तुम्हारी पत्नी तुम्हें चिताएगी. Sometimes the friends tell you that you are कई wrong. बार तुम्हारे मित्र भी बता सकते हैं. But if you don't have true repentance, लेकिन यदि आपके अंदर पश्चाताप नहीं है continue to sin and sin like Saul, और आप यदि पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे शाऊल के मानंद, a time comes when your prayers are not answered. तो एक समय वो आ जाता है जब आपकी प्रार्थना जो रुक जाती है. We read it in verse 6. हम 6वें आयत में पढ़ते हैं, He cried unto God. उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, He called the prophets. उसने भविष्यवक्ताओं को He बुलाया, didn't get an answer. लेकिन जवाब नहीं मिला. Now finally he called the medium. अंत में आकर उसने भावी कहने वालों को बुलाया. See. He did not show the kindness, the kind of repentance or the fruit he should have in his life. उसके अंदर वो फल पश्चाताप का नहीं आया. What he should have done there. उसे वहाँ पर क्या करना चाहिए था? He should have waited upon the Lord. उसे परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए. Pray and pray. प्रार्थना करते जाना चाहिए. Plead and plead. परमेश्वर के सामने दुहाइयां देनी And चाहिए. also confess and confess. और अपनी गलतियों का अंगीकार करना And चाहिए. finally wait upon the Lord. और परमेश्वर की बाट जो होनी चाहिए थी. But then he started consulting the mediums and the spirits. लेकिन वो भूत सिद्धि करने वालों से मिलने लगा. Let me say, cut the story short. मैं कहानी को छोटा करके Finally, he committed suicide. अंत में उसने खुदकुशी कर ली. Because when he found that his enemies have surrounded him all sides, जब उसने ये देखा कि दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया, he requested his armor, man who was carrying his armors. जो उसकी ढाल ले जा रहा था, उसका जो मित्र था, When he found that, oh, the enemy is coming close to him, जब उसने ये देखा कि उसका बैरी उसके बिल्कुल नजदीक आ गया, he requested him. उसने उससे विनती की. What did he request him? उसने उससे क्या विनती He की? said, you kill me with your sword. उसने कहा कि मुझे इस तलवार से मार दे. And when first say in 1 Samuel chapter 30, पहला शमूएल 30 अध्याय, and we find there that that man was afraid of him not to kill him with his sword. लेकिन वो बंदा जो था वो डरता था उसको अपनी तलवार से मारने से. Then what did this king did? लेकिन उस राजा ने क्या कहा? Then he shoved his own sword in his stomach. तो उसने अपनी तलवार से खुदकुशी कर ली. The king, राजा, because there was no true repentance. क्योंकि उसके अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं था. Brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों,
when we have been warned in the book of Revelations, जब हमें प्रकाश की पोथी में चेतावनी मिल गई है, in 7 churches, 7 कलीसियाओं, first 3 chapters पहले 3 अध्याय about repentance, पश्चाताप के बारे में कहा गया है, we should be very cautious. तो हमें वहीं पर ही बहुत सावधान हो चौकन्ने जाना हो जाना चाहिए. चाहिए. These days God has given us time आजकल परमेश्वर ने हमें समय दिया है, not only to do the good works. सिर्फ भले काम करने के लिए नहीं. Over and again I say, I never disagree with the good works. मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं भले काम ना करने के लिए नहीं कह रहा, But what I'm saying, according to the scriptures, I need to search my life where I am at fault. लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वचन के मुताबिक कि पहले हमें अपने जीवन को जांचना है और परखना है, And then I need to come before God. और फिर हमें परमेश्वर के सामने आना है. Sometimes people don't realize. कभी कभी लोग इस चीज का एहसास नहीं करते. Saul didn't realize. साउल ने नहीं एहसास किया. Had he been waiting upon the Lord, शायद साउल परमेश्वर के बाढ़ जो था, धीरज धरता, had he not consulted the spirits and mediums, अगर वो भूत सिद्धियों के साथ सलाह मशवरा ना करता, probably he would have been spared. तो बच जाता. If he had asked the Lord for forgiveness, यदि परमेश्वर से माफी मांगता, God would have really shown him mercy. तो परमेश्वर उसके ऊपर दया दृष्टि करता. Now, in the New Testament, when we find about the life of Judas Iscariot, अगर हम नए नियम में आते हैं, जहाँ पर यहूदा इस्करियोती के जीवन के बारे में दर्शाया गया है. I don't want to go in very deep details about Judas. मैं बहुत गहराई में नहीं जाना मांगता यहूदा के बारे में, But one thing I want to tell you, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताना मांगता he हूँ. was chosen by the Lord Jesus Christ. उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना था. He was among 12 disciples. ये 12 चेलों के बीच में था. When Jesus prayed for the whole night, जब यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, when he chose 12 disciples, जब उसने 12 चेलों का चयन किया, and they were appointed as apostles, और उन्हें प्रेरित करके उनको नियुक्त किया गया, and then he told them what they are supposed to do, और फिर उनको कहा गया कि उन्हें क्या करना है, and he really gave them power और उनको सामर्थ दी, अधिकार दिया to go and heal the sick, कि बीमारों को चंगा करें, raise the dead. मृतकों को जीवित करें. Now, when Jesus has given this power to his disciples, जब यीशु मसीह ने ये अधिकार अपने चेलों को दिया, do you think that it was not given to Judas? क्या आप सोचते हो कि यहूदा को ये अधिकार नहीं मिला होगा? Judah also had the same power, तो यहूदा के पास भी यही अधिकार था, but he did not utilize his power in the right direction. लेकिन यहूदा ने इस अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. When we see Mark chapter 6 verse 7, जब हम मरकुस की इंजील after the selection of the 12, 6वां बाब, read this passage very carefully. मरकुस की इंजील 6वां बाब, After selection of these 12 disciples, कौन सी वर्स है? I'm telling, verse 7 part, 6 and 7 together. 6 और 7 आयत. Then he went about among the villages teaching. He called the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over the unclean spirits. उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया. See, अब आप देखें, very clearly, यहाँ पर बड़ी साफ तरीके से Judah was also given the same power. आप देख रहे हैं कि यहूदा को भी यही पावर मिला था, But he did not utilize his given power by God in the right direction. लेकिन उसने परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. Now, what I want to say here, मैं यहाँ पर क्या कहना मांगता see, हूँ, God never intervenes in our sweet will. परमेश्वर हमारी मर्जी में हस्तक्षेप नहीं करता. He gives us many things. वो हमें बहुत कुछ देता है, Now, it depends on us how we use it, लेकिन ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, how we misuse it. हम उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल करें. It depends on us. ये हमारे पर निर्भर करता If we है. use it properly, अगर हम उसका सही इस्तेमाल it's करेंगे being blessed. तो हम आशीष पाएंगे. If it is misused, अगर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे we get the results in the wrong direction. तो हमें उसके नतीजे गलत दिशा में मिल जाते He हैं. was elected by Jesus Christ, यहाँ पर उसको यीशु मसीह ने चुना, but he had wrong motives. लेकिन उसके गलत इरादे थे. He played with money. उसने पैसे के साथ खिलवाड़ He किया, always had the bag of money. क्योंकि उसके पास हमेशा पैसा रहता था. You remember when I read the Gospel of Luke chapter 3? जब मैंने लूका 3 पढ़ा था, There we have been told what kind of repentance we should have or what kind of the fruit we should have. वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि किस तरीके का पश्चाताप हमारे अंदर होना चाहिए. Luke particularly talks about the money. लूका जो है वो पैसे के बारे में खास बात करता है, And this brother Judas played with money. और ये जो यहूदा है, इस भाई ने पैसे के साथ खेल किया. Just for 30 coins he sold his master. सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के कारण
उसने अपने मालिक को बेच दिया। Many people ask me a question. कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, When Jesus knew that he would sell him, why did he keep in his band? जब यीशु मसीह को पता था कि वो इस तरीके का बंदा है, तो यीशु मसीह ने उसको क्यों अपने चेलों में शामिल किया? I give them one simple answer. मैं उनको एक साधारण सा जवाब देता हूँ। Jesus wants to tell us यीशु मसीह में बताना मांगता है that if you do the right thing, कि यदि आप सही काम करेंगे you get good fruit. तो आपको अच्छा फल मिलेगा, If you do the wrong things, गलत काम करेंगे you can lose your life. तो आप अपना जीवन भी गवा सकते And हैं। finally, Judas lost his life. और आप देखें कि फाइनली अंत में आकर यहूदा ने अपना जीवन गंवा दिया। For what? क्यों? For corruption. क्योंकि वो गलत उसने काम किया, धोखाधड़ी के लालच में. धोखाधड़ी के लालच में। Yeah, here you see, he was given power by the Lord Jesus Christ. He was sent 2 by 2. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसे परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, अधिकार दिए हैं, No. और दो दो करके चेलों को भेजा है। Church, we need to understand one thing. कलीसिया हमें एक चीज समझने की जरूरत है, Why have we been called today on this earth? हमें इस पृथ्वी पर क्यों बुलाया गया है? You must understand that. आपको ये समझना पड़ेगा। And if God has called you, अगर परमेश्वर की आपके लिए बुलाहट है, then have true repentance in your heart. तो फिर सच्चा पश्चाताप अपने हृदयों में, Then stand until death, be faithful unto God, and God will तो lift फिर you up. अंत तक वफादार बने रहें और परमेश्वर आपको उठाएगा। Maybe I have to lose my life. हो सकता है हमें अपनी जान भी गंवानी Maybe पड़े, you have to lose your life. हो सकता है आपको अपनी जान This गंवानी is what I पड़े। want to tell you for lastly. मैं आपको यही बताना मांगता हूँ। I'll bring your attention on Revelation chapter 2. मैं प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य When we दूसरा अध्याय पे लेकर आता हूँ। when we are talking about the church of Pergamum, जब हम फरगुमन की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं, Jesus is encouraging and motivating the church here. यीशु मसीह जो है वो उत्साह दे रहा है, कलीसिया को प्रेरित कर रहा है। As I told you that the church was a church of compromising. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कलीसिया जो है ये समझौता करने वाली कलीसिया है। People were worshipping the snakes on the altars of gods. यहाँ पर जो कलीसिया है वो सांपों की पूजा कर रही थी You see परमेश्वर the की वेदी के ऊपर। you see the sign in my hands on a page. आप ये चिन्ह देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है, A snake on the stick. ये एक डंडे के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ है। This is the sign which we find at the hospital ambulances these days. ये जो चिन्ह है ये हम एम्बुलेंस के ऊपर कई बार देखते हैं। People were worshipping snakes and they were also worshipping God at the same time. पर लोग जो थे वो सांपों की भी पूजा कर रहे थे और परमेश्वर की भी उसी समय पूजा कर That's रहे why I said this was a compromising church. थे। ये एक समझौता करने वाला But कलीसिया here was a person लेकिन यहाँ पर एक शख्स है who had a true repentance in his जिसके heart. अंदर सच्चा पश्चाताप है। He was asked to stop worshiping the Lord Jesus Christ उसको यीशु मसीह की उपासना करने से मना किया गया and to worship the Roman Empire. और रोमी हुकूमत की उपासना करने के लिए कहा गया। Now, here in verse 13, chapter 2, 13वीं आयत दूसरा अध्याय, we read it in Hindi. This is my last point. हिंदी में पढ़ते हैं। I'm finishing it now. मैं अब इसको खत्म करने जा रहा हूँ। Yeah, read it. मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है Okay. जहाँ शैतान का सिंहासन है। Yes. तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है Huh? और मुझ पर विश्वास करने से Yeah. उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंत पास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है. Ecclesia, church, listen to me about this man. कलीसिया आप इस अंतिपास के बारे में ध्यान से सुने। This was the man who had true repentance in his heart. ये वो बंदा है अंतिपास जिसने सच्चा पश्चाताप किया। There was a lot of pressure of Roman Empire on him to deny the Lord Jesus Christ उसके ऊपर रोमी हुकूमत का बहुत ज्यादा दबाव था कि वो यीशु मसीह का इनकार करे and to admire and worship the Roman Empire. और रोमी हुकूमत की उपासना करे। But he said, no, लेकिन उसने कहा नहीं, Jesus Christ is King of Kings for me, उसने कहा यीशु मसीह मेरे लिए राजाओं का राजा है, Lord of Lords for me. प्रभुओं का प्रभु है। If I'll worship यदि मैं उपासना करूंगा day and night, दिन और रात, outside or inside, बाहर या अंदर, before the public, पब्लिक के सामने, it is the Lord Jesus Christ. तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। And finally, you know what the king said? और आपको पता है कि राजा ने अंत में क्या कहा? Listen to this story very carefully. आप इस कहानी को ध्यान से सुने। Many of you will not find probably in many books. शायद आपको ये कहानी कई किताबों में नहीं मिलेगी। I kept this book for the last 28 years with me of Dr. Paul Yonggi Cho. ये पॉल योंगी चो की किताब है जो मैंने 28 सालों से संभाल के रखी है And yesterday I did read it very carefully. और मैंने कल उसको बड़े ध्यान से पढ़ा फिर से। And he repeats the history about this man. और वो इस बंदे के इतिहास के बारे में बात कर रहा है। King told the public, the leaders,
or his assistants. राजा ने अपने सेनापतियों से कहा, He said, go and get a brazen bull. उन्होंने कहा कि एक तांबा और पीतल कब बुल, a brazen bull. अच्छा, एक तांबे का बैल बना के लेकर आओ. And when this brazen bull was brought, और जब ये तांबे का bald बनाया गया, बॉल्द बनाया गया, it was heated up very, very strongly and badly. इसको बहुत बुरी तरह से गर्म कर दिया गया. And Antipas was made sit on that bull. और एंटिपास को इस बैल के ऊपर बिठाया गया. Antipas was roasted. एंटिपस जो था वो बिल्कुल बुरी तरह से जल गया था. Brothers and मेरे sisters, भाई और बहनों, where are you standing today? आज आप कहाँ पर खड़े हैं? Where are you standing today? आप कहाँ पर खड़े हैं? We are talking from the book of Revelation. हम प्रकाश की पोथी से बात कर रहे हैं. Anything can happen to me, मुझे कुछ भी हो सकता but है, today this thing is revealed to me. लेकिन आज मेरे ऊपर ये चीज का प्रकट कर दी गई है. Listeners, this is revealed to you. सुनने वाले ये आज आपके ऊपर ही प्रकट कर दिया Can गया we है. stand like Antipas? क्या हम एंटिपास की तरह खड़े हो सकते Or हैं, will we go just like King Saul and Judas? या हम यहूदा की तरह या साउल की तरह चलेंगे? Here Jesus is appreciating, admonishing, and lifting him up in the book of Revelation. यहाँ पर यीशु मसीह उसको उठा रहा है प्रकाश की पोथी में. But those two people, लेकिन वो जो दो व्यक्ति, they committed suicide. लेकिन उन्होंने खुदकुशी कर ली. Be careful, church. आप सावधान हो जाइए. I have to be careful. मुझे सावधान होना है. We have to really read it very carefully हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है इन शब्दों and को. then give it wholeheartedly whatever we have to the Lord. और जो कुछ हमारे अंदर है उसको परमेश्वर को अर्पित करना है. Above all, और सबसे बढ़कर, I'm saying again, above all, और सबसे ऊपर बढ़ के, we just let's sit politely these days. हम आराम से बैठे धीरज धर के. Whenever we get time, जब भी हमें समय मिलता है, let's not start working only on the internet or WhatsApp or Facebook, but rather finish your time with the Lord Jesus Christ. बजाय ज्यादा समय इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगाने के ज्यादा समय वचन को खत्म करने में लगाएं. And encourage our brothers and sisters. और अपने भाइयों और बहनों को उत्साह दें. Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें. Pray for your family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना Because करें. days are short क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं and days are evil. और दिन जो है वो अच्छे नहीं है. It's my, with folding hands, it's my plea मैं हाथ जोड़कर आपके सामने विनती करता who हूँ are listening to me. कि जितने लोग सुन रहे हैं, Pray for us. हमारे लिए प्रार्थना Pray करें. for my wife. मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें. Because it's our big responsibility to be faithful with the Lord and with the church. कि हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के साथ और अपनी कलीसिया के साथ वफादार बने रहें. Let's not take things easy. हम बातों को मतलब आराम से ना लें. God is going to bless you when you stand firm in your faith. परमेश्वर आपको बरकत देगा जब आप विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे. Like whom? किसकी तरह? Like Antipas, एंटिपास की तरह, which I read from the book of Revelation. जो मैंने प्रकाश की पोथी से जिसका नाम पढ़ा. God bless you today. परमेश्वर आपको बरकत दे. May the Lord touch your souls today. परमेश्वर आज आपकी आत्माओं को छुए. May the dear Lord bless your families today. परमेश्वर आपके परिवारों को बरकत दे. May the dear Lord bring complete healing in your families. परमेश्वर आपके परिवारों में संपूर्ण चंगाई लेकर May आए. the dear Lord provide you everything you need. परमेश्वर आपको वो सारी चीजें जिनकी आपको जरूरत है आपको पहुंच दे. If you need a job, may God provide you job in lockdown period too. यदि आपको नौकरी की रोजगारी की तलाश है तो परमेश्वर आपको रोजगारी दे, Because He does. क्योंकि वो देता है. आइए प्रार्थना करेंगे. आइए प्रार्थना करें. Father, we thank you for this beautiful time. परमेश्वर मैं आपका सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ. Father, we know that we both stood in this small studio which doesn't have the AC. हम चाहे यहाँ पर गर्मी में खड़े हों, Lord, we pray provide us AC during this week हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एसी इस जगह के लिए मिले, so that Lord we could share more beautifully, practically, and truly the word of God for the people, for the public, for the church. हम और अच्छी तरह से इन वचनों को कलीसिया के साथ बांट सके. Lord, bless the church परमेश्वर आप कलीसिया को आशीष दें which is scattered here and there. जो इन दिनों में बिखरा हुआ है. Oh Lord, we pray, we plead you, Lord, आपके सामने विनती करते हैं bring, प्रभु, bring healing to our nation, आप हमारे देश को चंगा करें, bring healing to our land, हमारे इस जमीन को चंगा करें, bring healing to our families, हमारे परिवारों को चंगा करें, bring healing to our churches. हमारी कलीसियाओं को चंगा करें. Lord, give us faith to stand firm like Antipas. हमें ऐसा विश्वास दे कि हम एंटिपास की नहीं दृढ़ता से खड़े रहें विश्वास के लिए. Also give us that spirit to do the good works
to feed the hungry. वो आत्मा दें कि हम जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जो तंगे में हैं, उनकी मदद कर सकें। Lord, provide us the resources and the sources. हमें प्रभु परमेश्वर आप मुहैया करें ताकि हम बांट सके लोगों के साथ। Lord, we know there are still so many people who are looking for some kind of shelter, the food, the clothing, and many things. हम देख रहे हैं कि आज अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। Lord, enable us that we may be a source of blessings for them. हमें इस लायक बनाए कि हम बहुतों के लिए बरकत बन जाएं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। आइए हम आशीष वचन में जाएंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की रिफाकत और संगत हमारी इन सब सुनने वालों पर और जो सुनेंगे उन पर अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।